Ladies and gentlemen, good day and welcome to Indo SMC Limited Q3 FY26 Results Conference Call hosted by Equibridix Advisors Private Limited. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on the beliefs, opinions and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Ruchika Shah from Equibridix Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you. A very good morning to everyone. Welcome to the Q3 FY26 earnings call of Indo SMC Limited. From the management team we have with us today, Mr. Neel Shah, Managing Director and Chief Financial Officer, Mr. Nitin Patel, Chairman and Non-Executive Director, Mr. Deepal Patel, Financial Consultant. We will have opening remarks from the management team, post which we will open the floor for question and answer. With that, I would like to hand over the call to Mr. Neel for opening remarks. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. A warm welcome to all our investor stakeholders. Join us for Indo SMC Q3 FY26 earnings call, our first earnings call after listing. Thank you for your trust and support as we being this new chapter as a public company. Indo SMC continue to focus on delivering high precision utility competitive electric solution across meter cubicle, CT, FRP cable tray and SMC meter boxes. Our emphasis remaining on quality execution and building long-term customer relationships. Q3 FY26 has been strong quarter for us. Revenue from opportunity to shoot as approximately 10,149 lakhs, reflecting healthy quarter-on-quarter growth. EBITDA come in at 1,645 lakhs and profit approx tax shoot 12.10 lakhs, 1210 lakhs, showing shooting improvement driving by opportunity leverage and disciplined cost management. During the quarter, we secured fresh order worth rupees 54 crores as the date on total order book stand at 142 crores, giving the strong revenue visibility for the coming quarters, and also getting some new orders by today, approx 48 crores. We also receiving MSCDCL vendor approval for the 11 kV meter cubicle, continue to see repeatedly order from key customers. It's approx 10 crores for this year. Reaffirmation of our market position. Additionally, we significantly improved our work and capital efficiency, with the receivable days reducing from 83 days to H1 FY26 around 40 days in quarter 3 FY26. It's remarkable for us because it's receiving duration around 40 days in quarter 3. Going forward, our focus remaining on the profitability growth, effective execution, our order book, and maintaining strong governance stand in listening the entirely. Within that, I conclude my remark and would now be happy to take our questions. Thank you once again for our time and contribution support. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question
may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Abhi Jain from AJ Capital. Please go ahead. Hi, am I audible? Yes, you are audible. Hi, good afternoon, sir. Based on numbers. Yes. Now, since you have got some visibility around the order book and we are also approaching the year end, so I just wanted to understand how is, growth shaping up? How do you see yourself moving on from here? Any revised guidance for FY26 and FY27? Because especially, obviously transformers is a space and the whole power sector is a space which is booming and which is high in demand. But given that, we have seen a lot of re-rating happening in the sector and a lot of companies being rated down, given the uncertainty in the global world, how is demand shaping up for you? And can you give us some sort of idea about next 2-3 years? How do you see your revenues growing? How do you see the demand shaping up? Something around that. Yes, sir. Basically, मैं comfortable with the Hindi? Yes, sir, please. I would have preferred अगर आप हिंदी भी पहले बोलते तो ज़्यादा easy रहता. Surely, sir. बेसिकली कैसा है कि अभी नो डाउट हम लोग जिस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यूटिलिटीज वो काफी बूमिंग है और आगे भी यूटिलिटीज में हमारा काफी अच्छा पकड़ है. राइट नाउ हम 20 स्टेट्स में प्रेजेंट है और ऑर्डर टू ऑर्डर हम लोग बुक कर रहे हैं. रेगुलरली कोई भी इंडस्ट्री पावर के बिना तो चल नहीं पाएगी. तो अभी पावर सेविंग प्लस रिन्यूएबल जो भी स्टैंड करना है तो वो क्लियर रहेगा इंडस्ट्री का. तो सब अपनी सभी यूटिलिटीज जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई या यू बैस्कॉम या अलग अलग जो भी गवर्नमेंट है हमारी, तो वो अपने पावर सेक्टर को चैनलाइज और प्रॉपर मैनेजमेंट में लाना चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी हो गई या कोई भी जबकि, तो इसमें हमारा एक योगदान रहेगा. तो मेनली फोकस वही है कि आगे अभी अगले 10 साल तक विजिबिलिटी क्लियर है कि काफी बूम मार्केट है, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं. राइट नाउ पहले स्मार्ट मीटरिंग था, अभी ऑलरेडी उस पर भी काम चल रहा है गवर्नमेंट का, प्लस यूटिलिटीज पे भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस है. इलेक्ट्रिक सेविंग के लिए भी प्रोजेक्ट काफी चल रहे हैं, जो पूरे रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें हम काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे इसी प्रोडक्ट लाइन से. जो टिल डेट हम लोगों ने अचीव किया है तो ऑलमोस्ट हम इसी पेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, जो नेक्स्ट ईयर भी मल्टीफोल्ड में रहेगा. क्योंकि अभी राइट नाउ के जो भी हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं हमारे 3 साल किसी भी गवर्नमेंट यूनिट्स में जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद ऑर्डर बुक्स काफी बढ़िया और बड़ी मिलती है, क्योंकि एक बिलीव और ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कंपनी पे. तो हमारा फोकस वही है कि हम ट्रस्ट के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर बुक और वो सब क्लिक करें और अगले साल भी इसके मल्टीफोल्ड में ही काम करें हम लोग, जिस हिसाब से जिस पेज से हम कंटिन्यू जा रहे हैं उस हिसाब से. Okay, that's great, sir. Any guidance on FY26, sir? What will you be closing at revenue on FY27? राइट नाउ अभी जिस पेज से जा रहे हैं तो अराउंड हमारा टारगेट तो वैसे इंटरनल टारगेट भी 280-290 के बीच का था, मगर उसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से पेस है और क्लियरेंस है ऑर्डर्स के. क्योंकि इस बार बारिश काफी H1 में काफी रही थी तो मटेरियल रेडी करके काफी रखा हुआ था हमने, तो इसीलिए जो सेकंड ये Q3 हमारा था तो उसमें जो पेस थी वो मेन वही थी कि हम लोग ऑलरेडी मटेरियल्स और वो सब प्लान आउट पहले से ही प्रॉपर ऑर्डर क्लियरेंस थे हमारे पास, तो वही कंटिन्यूटी में चला और अभी भी कंटिन्यूटी ऑर्डर्स और क्लियरेंस आ ही रहे. तो बिलीविंग करेंगे कि हम अराउंड 300 प्लस का टारगेट अचीव करें इस बार, क्योंकि तो अच्छा हमारा एक परफॉर्मेंस बेस रहेगा. और नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्लियरेंस हमें अच्छा मिल रहा है सब जगह से, तो वो एक प्लान आउट है हमारा कि ऑलमोस्ट 450 प्लस जाए अराउंड मिनिमम. उससे बेहतर जो भी परफॉर्मेंस होगा वो ऑर्डर टू ऑर्डर आपको अपडेट किया जाएगा.
That's brilliant, sir. I wish you all the best, sir. तो थोड़ा सा आप ये आइडिया दे पाएंगे क्या कि आपके मार्जिन इम्प्रूव होंगे या यू आर बी एबल टू मेंटेन दीज मार्जिन और विल बी एनी रिस्क? बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर ग्रोइंग वेरी एट अ वेरी फास्ट पेस तो एक रिस्क भी रहता है. तो कैन यू एड्रेस द इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स अबाउट व्हाट आर द रिस्क दैट यू सी टुवर्ड्स योर ग्रोथ? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या हर्डल आ सकते हैं विच विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव दीज ग्रोथ नंबर्स? राइट नाउ मैं हर्डल्स तो अभी देखने क्योंकि ऑलरेडी मैंने पास किए हुए हैं. नॉर्मली हर्डल्स वही है कि जो भी अभी हम राइट नाउ जिस पोजीशन पे काम करें उसी पेस को कंटिन्यू करना चाहिए. तो काफी सारे प्लानिंग और सिस्टमेटिक होगा. आईपीओ के बाद वो एक फ्री हैंड भी मिलता है हमें कि हम जो प्लान कर रहे हैं तो वो अच्छे से बेहतर से परफॉर्मेंस कर पाए. अभी राइट नाउ हम लोग एक्सपोर्ट को भी फोकस कर रहे हैं और जब भी मार्केट कैसा होता है कि H1 H2 प्लस माइनस रहता है तो उसके लिए भी हमने प्लान आउट किए हुए हैं कि प्रॉपर ग्रोथ प्रॉपर स्टेबिलिटी एक मिले. शुरू में कई बार कैसा होता है कि अप्रूवल्स के उसकी वजह से हम रुकते हैं. राइट नाउ कई सारी जगह पर हमने अप्रूवल्स ऑलरेडी गेन कर चुके हैं. अभी हम अलग इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस साथ में ही करेंगे. इसी प्रोडक्ट रेंज के साथ हम रेलवेज या अपनी डिफेंस में भी हम लोग परफॉर्मेंस कर पाए उसके लिए भी हमारा अभी एक सेक्टर चल रहा है काम और R&D और वो सब फोकस में ही है. तो राइट नाउ के वो हर्डल्स मुझे नहीं दिख रहे कि मैं ये जो नंबर्स जो बोल रहा हूँ आराम से मैं अचीव कर पाऊंगा और वो कंटिन्यूटी ग्रोथ में ही रहेगा क्योंकि ये रेगुलर रिक्वायरमेंट है. और बाकी आगे और नए सेक्टर्स ऐड हो गए हमारे इंडस्ट्री में तो वो बेहतर परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे उसमें. Brilliant, sir. All the best to you, and hopefully you will be able to do better than what you're saying. Surely, sir. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Nishita from Sapphire Capital. Please go ahead. Yes, hello, good afternoon. सर तो मेरा क्वेश्चन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे था. आपने आपके आईपीओ कॉल में मेंशन किया था कि अभी फिलहाल हम लोग 30-40% यूटिलाइजेशन पे हैं. तो Q3 में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या था और हम ये कितना जल्दी रैंप अप कर पाएंगे? बेसिकली अभी हमने जो 30-40% बताया था उस वक्त पे वही था कि 6 मंथ का था जब एक बारिश का मौसम हमारी इंडस्ट्री में रहता है तो तब स्लो डाउन और प्रोडक्शन भी हम स्लो डाउन रखते हैं. उसके बाद हमने कॉप अप किया है. तो मेनली मेरा प्रोडक्शन रेशियो अभी अराउंड 60-80% पे आएगा ईयर एंड तक और उसके बाद आगे हम और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और टोटल 90 तक जाना चाहेंगे. ओके, तो आपने ये भी मेंशन किया था कि हमारे EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन 18-19% है, बट अभी फिलहाल हम 16% पे इसलिए क्योंकि हमारा यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का पूरा नहीं है. तो क्या हम मार्जिन बेटर होते देख सकते हैं और FY26 में क्या मार्जिन पे हम एंड करेंगे? बेसिकली मैं इस पे पैट पे बात करना चाहूंगा क्योंकि पैट हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा और भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा. अभी ऑलमोस्ट हमारा मिनिमम टारगेट रही रहता है कि 10% के अराउंड हम पैट लाए मगर उसमें भी हम बेहतर परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर रहे हैं. 11 तक जा रहे हैं तो टारगेटली वही है कि अगर 12% पे गए और उसी ग्रोथ स्पीड से गए तो वो बेहतर है क्योंकि अभी बाइंग और वो सब भी हमारा स्ट्रांग हो रहा है तो उसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे. तो FY27 में पैट मार्जिन 12% तक हो सकता है? टारगेट वही रहेगा हमारा कि हम लोग अचीव कर ले क्योंकि अभी भी हम ऑलमोस्ट 11 पे चल रहे हैं तो सस्टेन मीन इसको करना चाहेंगे. साथ साथ में इम्प्रूवमेंट भी की गुंजाइश ज्यादा है क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग वो सब भी प्रेफरली हम कर रहे हैं अभी रेगुलरली फेस पे. राइट. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी ऑर्डर बुक हमारा 54 crores फ्रेश ऑर्डर्स वी गॉट फॉर Q3 FY26. तो एग्जिट ऑर्डर बुक फॉर FY26 कितना रहेगा? पहले राइट नाउ मार्च तक हमारा ऑर्डर बुक ग्रोथ होता रहता है क्योंकि शायद ये जब ये प्लान आउट हुआ उसके बाद भी हमने आज ही ऑलमोस्ट एक ऑर्डर हमने अचीव किया है तो वो ऑलमोस्ट
CR का था, तो ऑलमोस्ट हमारा मार्च एंड तक ऑर्डर बुक 250 अराउंड हो जाना चाहिए, और बाकी रेगुलरली हर मंथ टू मंथ या 2 महीने में एड ऑन होता रहेगा रेगुलरली फेस पे। तो जनरली एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना होता है ऑर्डर कंप्लीट करने का? नॉर्मली ये ईयर टू ईयर का रहता है कि 7 to 12 मंथ्स के अराउंड आपको क्लियर करना है। फिर वापस दिसंबर ऑनवर्ड्स अपडेट रहता है कि आप दिसंबर से लेके मार्च तक आपका टोटल ऑर्डर बुक रीजनरेट होगा। अगर कोई बाकी है तो उसको भी मार्च एंड तक आपको खत्म करना है, वो टारगेट रहता है हमारा। क्योंकि फ्लक्चुएशन भी मार्केट में, क्योंकि मेटल्स भी है हमारे में, प्लस फाइबर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी है, तो वो फ्लक्चुएशन ईयर टू ईयर रहता है, तो वो डिपेंड रहता है हर टेंडर टू टेंडर। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन केपेक्स पे है। आईपीओ ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था कि 25 करोड़ हम केपेक्स के लिए यूज करेंगे, तो कोई अपडेट उस पे? बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा प्रेस यूनिट 2000 टन का था वो प्लान आउट ऑलमोस्ट कर लिया है, वो टेक्निकली क्लियरेंस चल रहा है, प्लस डाइस की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से ड्राइंग्स और वो सब अप्रूवल्स में ही है। ऑलरेडी हमने पल्टूजन्स की मशीन बाय आउट कर ली है, दो मशीन ऑलरेडी डिलीवर्ड है हमारे यहाँ पे, और बाकी 3 मशीन और आएंगे, तो ऑलमोस्ट ग्रोइंग है। बाकी हमारे लैब इक्विपमेंट है जो ऑलमोस्ट फरवरी एंड तक रेडी हो जाएंगे हमारे वेंडर के वहां पे, तो डिलीवर्ड हम ले लेंगे। जो बेसिकली हमारे नासिक यूनिट के लिए रिक्वायर्ड है, जो टेक्निकल हम जो मीटर क्यूबिकल कर रहे हैं, या हम जो 11 के लिए अभी हमने अप्रूवल लिया है, अब 33 में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है लैब अपडेशन के लिए, तो वो हमारा प्लान आउट फर्स्ट रहेगा कि हम लैब भी अच्छे से अपडेट कर ले। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Before we take the next question, a reminder to all the participants, if you wish to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Samarth Kanbar from SKS Capital. Please go ahead. गुड आफ्टरनून नील भाई। गुड आफ्टरनून। लास्ट जो क्वेश्चन था उसी में एडिशन मेरा क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेट 30% यूटिलाइजेशन अभी आप कर रहे हो, तो उसमें मोटा मोटी आप रेवेन्यू अभी बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये ईयर एंड तक कितना हो पाएगा? अगर आप 450 करोड़ की टॉप लाइन बोल रहे हैं क्या? लास्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की ना? करंट ईयर नहीं, करंट ईयर तो अभी जिस हिसाब से तो वो 300 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। एक्चुअली हमारा इंटरनल टारगेट 280 to 290 था, मगर जिस हिसाब से ऑर्डर बुक और आईपीओ के बाद एक कैसा है कि नए नए स्टेट्स भी काफी सामने से ओपन हो रहे हैं, तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस बेस्ड काम करें कि जो मीटर क्यूबिकल था उसमें भी हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए ही था कि हम नेक्स्ट ईयर में ही उस पर काम करेंगे। अभी हम टेक्निकल अप्रूवल्स लेते हैं, मगर उसके बाद जैसे आईपीओ हुआ उसके बाद काफी सारे तेजी से अप्रूवल्स भी आने लगे और ऑर्डर बुक भी काफी बेहतर बनने लगी, तो हम जो कैपेसिटी पे इनहांस कर रहे थे उससे ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी अगर टारगेट से ऑर्डर मेरे को खत्म करना है, तो उसी हिसाब से प्लान आउट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट काफी बेहतर है और अभी रिक्वायरमेंट भी काफी तेजी से निकल रही है, क्योंकि H2 ऑलवेज हमारा बेहतर रहता है परफॉर्मेंस बेस्ड और ऑर्डर बुक बेस्ड, तो अभी उसी पे टारगेट हम कर रहे हैं। तो हमारा इसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना रहता है और कैसे आप मैनेज? राइट नाउ लास्ट अगर H1 का हमारे 83 डेज का था, जो उसमें भी हमने बेहतर करके ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज हम इनहांस करे। अगर गवर्नमेंट है तो 45 डेज और पब्लिक है तो अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट 30 डेज पे ला दिया है सबको, इसीलिए एवरेज हमारी 40 डेज पे आ रही है अभी राइट नाउ, जो बेहतर है। और मोटा मोटी 450 करोड़ आप नेक्स्ट ईयर का बोल रहे हैं, तो मार्जिन इसमें डेफिनेटली बेटर ही होंगे ना? मैं चाहूंगा एबिटा भी यही मैनेज हो जाए और प्रॉपर लाइनअप से चले, और जो हम पैड कर रहे हैं मैं ज्यादा पैड पे फोकस करता हूँ,
क्योंकि एबिटा तो ऑलमोस्ट पैट अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो एबिटा ऑटोमेटिक हो ही जाता है. Agree. Agree. All right. And congratulations for very good set of numbers and all the best. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rishit Zaveri from CV Asset Managers LLP. Please go ahead. Good afternoon, sir. Am I audible? Good afternoon. Yes, you are audible. Congratulations on a great set of numbers. Sir, my first question was on the segment split. So if we see our segment split has been a bit volatile. So going ahead in next 2 to 3 years, how do we see our segment split spanning around in the 3 core segments which we are? बेसिकली हम लोग कॉम्पोजिट इंडस्ट्री में है सर. तो हमारा फोकस एक्चुअली यूटिलिटी से ये था कि लास्ट 30 ईयर्स से इसी बिजनेस में हम लोग काम कर रहे, तो वो इजी टू ग्रैब था हमारे लिए. तो हमने फोकस उसी पे फर्स्ट ऑफ ऑल किया है. और अभी वोलेटाइल एक्चुअली कैसा है कि रेगुलर बिजनेस भी ये अच्छा है, तो हम लोग इसको ही फोकस कंटिन्यू में रखेंगे. साथ साथ में हम रेलवे और डिफेंस को भी कॉम्पोजिट इंडस्ट्री में सर्व करना चाहेंगे. तो फोकस भी उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, डिजाइनिंग और नए इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना. प्लस एक्सपोर्ट पे हमारा फोकस अभी है कि जो भी ऑयल इंडस्ट्री रहती है वो हमारा पल्टूशन ग्रेटिंग का काफी बेहतर उपयोग कर रही है, तो उस पर हमारा फोकस भी है. तो अभी हमने लास्ट मंथ ही एक कंटेनर ओमान के लिए भेजा हुआ है ट्रायल के लिए. तो अगर रेगुलरली रहा तो वो भी एक बिजनेस साथ साथ में बढ़ता चला जाएगा. तो फिर हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करें, मल्टीपल इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि कॉम्पोजिट इंडस्ट्री उस हिसाब से सर्व करती है कि काफी सारे जो मेटल्स पार्ट होते हैं वो रिप्लेस करती है. तो वो आगे इंडिया में काफी बेहतर दिख रहा है मेरे को. हमारा कि अगर कॉम्पोजिट हो गया या किसी भी तरह से आप सर्व करोगे तो वो बेहतर ही करेगी मार्केट में आगे जाके, क्योंकि एरोस्पेस है, सब में अभी कॉम्पोजिट ऑलरेडी गोइंग ऑन पर चल रहा है. I agree, but हमारा क्या टारगेट स्प्लिट है, कितना एफएमसी होगा, कितना एफआरसी होगा, कितना इलेक्ट्रिक होगा इन नेक्स्ट 2 years? ओके. पहले वो अभी कैसा है कि ऑर्डर्स बुक पे डिपेंड रहेगा, मगर फिर भी हम अगर बड़ी पकड़े तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि एसएमसी से बॉक्स में हम अराउंड 120-150 के अराउंड क्लोज डाउन करें. हमारा जो मीटर क्यूबिकल सिटीपीटी इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलमोस्ट 200 के अराउंड क्लोज डाउन रहे. और बाकी का एफआरपी हमारा रहेगा ऑलमोस्ट, जो अलग अलग इंडस्ट्री में सर्व करेगा. रेलवे हो गई, आर्मी हो गई, और हमारी जो अभी भी पल्टूशन केबल ट्रे और वो सब में है तो उसमें सर्व करेंगे हम लोग. और एसएम से भी हम काफी नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं. वो आगे आपको अनाउंसमेंट मिलेगा उसके कि हम जिस इंडस्ट्री में और जिस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो आपको अपडेट मिलती जाएगी. Okay, understood, sir. And sir, next question, मतलब I understand the industry we work on a monthly order booking system. Every month we'll increase the order book. But to achieve the 450 crore, do we have the enough working capital, or we have to add some debt to cater to the large order book and the growing order book? No, right now we have that working capital because just the IPO खत्म हुआ है, तो वो तो है. और बेसिकली इस साल का जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो भी एड ऑन हो जाएगा, तो वो इजी टू सर्व रहेगा हमारे लिए कि हम नेक्स्ट ईयर के नंबर्स तो इजीली अचीव कर लेंगे. Okay. And then to achieve that massive 450 crore mark, सबसे बुलिश स्टेटमेंट आपको कौन सा लग रहा है तीन में से? कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज? बेसिकली 2 जगह पे मेरे को लग रहा है. तो हमारे एक एसएमसी इंडस्ट्री है उसमें, और मेनली सिटीपीटी इलेक्ट्रिसिटी में. एफआरपी रेगुलरली चलता रहेगा क्योंकि वो एक रेगुलर सिस्टम में ऑर्डर्स आते रहते हैं और वो सब हम करते हैं. तो मेनली 2 पर हमारा फोकस है. एक एसएमसी बॉक्सेस, जहाँ पे अभी काफी सारे स्टेट्स को हमारे नए भी ओपन हो रहे हैं, और रिटेलिंग काउंटर भी हमारे काफी बढ़ रहे हैं. जो हमारा फोकस पहले उस रिटेल सेगमेंट में थोड़ा कम था, तब उसको भी हम फोकस कर रहे हैं प्रॉपर वे से. प्रॉपर टीम इनहांस भी हो रही है उसके लिए.
और दूसरा रहा सिटी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे अभी हम 2 स्टेट्स में अप्रूव लिए हुए थे, अब एड ऑन करते जा रहे हैं। जब भी महाराष्ट्र, गुजरात, फिर नेक्स्ट हमारा पंजाब में भी ऑलमोस्ट ऑर्डर हमें मिल रहा है, तो वो प्लान आउट है। अभी हम साउथ को भी अच्छे से फोकस और कैडर कर रहे हैं। Okay, sir. Sir, last question if I'm squeezing. So in our business, first of all, you guided for a 300 crore top line. If we see the quarterly run rate, so are we expecting a softer Q4 on a YY basis? ये थोड़ा seasonality होता है हमारे इंडस्ट्री में। जस्ट पार्डन सर, 300 ये साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल। December we closed around 100 crores of top line. Yes. So is there any seasonality in our business and are you expecting a softer Q4? Sorry to interrupt, Rishit, you are not audible. Can you use your headset mode, please? Is it better now? yes. Yeah, this is good. Thank you. Yeah. So first question on the seasonality. Is there any seasonality in our business? Just I don't understand that. तो मतलब ऐसा कोई क्वार्टर होता है जहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू आता है जहाँ पे गवर्नमेंट? हाँ, ये बेसिकली ये 2 क्वार्टर हमारे रहता है जो H2 में आता है, उसमें ज्यादा एक्चुअली ऑर्डर बुक, अभी हमारा ऑर्डर बुक भी बनता जाएगा, प्लस लास्ट ईयर के जो भी हमने ऑर्डर क्लिक किए वो मार्च तक हमें खत्म करने रहता है। तो ये 2 क्वार्टर बेहतर परफॉर्म, सिर्फ बारिश की वजह से स्लो डाउन आता है हर बार। Okay. Okay, sir. Understood. Thank you and all the best, sir. थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Neerav Bhanushali from Systematics PMS and AIS. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, hi. Thank you very much and congratulations on good set of numbers. So जो मैं समझना ये चाह रहा था कि जैसा वी आर गाइडिंग 300 करोड़ रेवेन्यू और ऑलरेडी 9 मंथ में हमने 214 करोड़ कर लिया है, द रिमेनिंग क्लोज टू 80 करोड़ एंड नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग 450 करोड़। सो विच सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूँ तो कौन से सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 करोड़, जैसे SMC में FRP एंड CTPT प्रोडक्ट्स, तो which will be the highest growth driver और क्या proportion होगा रेवेन्यू में इसका going forward? ओके, जस्ट मैंने जिस हिसाब से बताया तो वो एक्चुअली कैसा है कि वो फुल सेगमेंट के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं कि हम अचीव करेंगे। हमारे तीनों सेक्टर ऐसे यूटिलिटीज के बेस है। SMC ऑलमोस्ट हम 120 to 150 क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स नए ओपन हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो हमारा क्लोज डाउन आए के उस हिसाब से। जो अभी हमारा रेवेन्यू इसका चल रहा है जो CTPT इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम एड ऑन करना चाहेंगे ऑलमोस्ट 250 तक का। तो ऑलमोस्ट 27 का बोल रहे हो, राइट? नेक्स्ट 27? हाँ, नेक्स्ट ईयर का। अच्छा, और CTPT में वी आर टारगेटिंग हाउ मच? CTPT में हम लोग ऑलमोस्ट 250 का क्लोज डाउन करना चाहेंगे, जो हमारा नासिक यूनिट जो टेक्निकल यूनिट है यूटिलिटीज में, और ये SMC हमारा 120 to 150 के अराउंड रहेगा। और 250 में भी अगर थोड़ा ज्यादा वो डिपेंड रहेगा काफी थोड़े बहुत अप्रूवल्स पे, बाकी 250 क्लियर विजन है उसमें। और दूसरा हमारा रहेगा बाकी का FRP यूनिट से, जो ऑलमोस्ट 70 to 80 के अराउंड रहेगा हमारा। 70 to 80 और सर मार्जिन में ऑन द EBITDA फ्रंट, जैसा लास्ट क्वार्टर में 18% किया, अभी हम 16%। आपका आवाज क्लियर नहीं है, आप पीछे से। अच्छा, I'll go on there. Am I audible now, sir? Yes. So margin close to 16%. Sorry to interrupt, Mr. Bhanushali, we are unable to hear you. Hello. No, we are unable to hear you. Just a second. Hello.
एम आई ऑडिबल नो? जी जी Yes. जी। हाँ सर, मार्जिन में मैं पूछ रहा था, जब हम 18% सितंबर में हमारा था, अभी 16% एट EBITDA लेवल. So broadly, what will be the sustainable margins we are okay to operate? ये बेसिकली मैंने पहले भी बोला था, मैं पैट पे ज्यादा फोकस करता हूँ. एबिटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस वर्किंग के हिसाब से रहेगा, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि वर्किंग और बाकी सारे एक्सपेंस कई बार ज्यादा हो जाता है कि एक्सपेंस जो भी हम ऑर्डर्स बुक अचीव करना चाहेंगे उसके लिए वो सब. तो हमारा फिक्स पैट पे रहता है कि हम 10 to 12% के बीच में बात करेंगे, तो वो हमारा 10 से 12 के बीच में. हाँ, पैट उस हिसाब से रहेगा एट पैट लेवल. ओके. यस पैट. ओके. एंड जस्ट दूसरा मैं अंडरस्टैंड कर रहा था ऑर्डर बुक साइड में, जैसा अभी वी हैव क्लोज टू 142 करोड़ का ऑर्डर बुक, और हम आप बोल रहे हो मार्च क्लोजिंग आते आते हाउ मच विल बी आवर एग्जिट ऑर्डर बुक, एंड व्हाट इज द ऑर्डर पाइपलाइन राइट वी आर हैविंग राइट नाउ? ये भी 142 का ऑर्डर जो हमने दिया हुआ था वो भी 1-2 दिन पहले का था. राइट नाउ कैसा, जनवरी ऑनवर्ड्स हमारी इंडस्ट्री में दिसंबर में टेंडर्स होते हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स वो अलॉटमेंट स्टार्ट होता है. तो अभी हमने जस्ट क्लिक किया है आज, शायद 55 करोड़ आपने बोला कि यू हैव गॉट इट, और अनदर 40 is what I think today you have got it to close to ये मोटा मोटा 250 करोड़ तो ये होगी. बट 450 करोड़ की रेवेन्यू के लिए डू वी हैव एग्जिस्टिंग, मतलब 250 तो है हमारे पास, तो जो 150 है तो पाइपलाइन में डू वी हैव इट नेक्स्ट क्वार्टर तक हमारे हो जाए? या वो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे ऑर्डर्स, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी मैंने लास्ट टेंडर सिर्फ आंध्रा का क्लियर किया था, वो ऑलमोस्ट 300 प्लस का था. तो उसमें से मैं सिर्फ 30% भी सोचूं तो 100 करोड़ का ऑर्डर हुआ वो अलग से. तो वो कैसा है सर, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी निकल रहे हैं, और हम विन भी कर रहे हैं. अगर हमारी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो कैसा है कि हम मेजर प्लेयर बहुत कम लोग हैं, तो इजीली मिल जाता है सबको, कुछ ना कुछ काम रहता ही है. ओके. And the payment cycle में are you, मतलब how is it, are you facing any issues on this front state wise? Yeah, that's normal payment. Right now we are not ever facing the issues because starting में कैसा था कि हम लोगों ने थोड़े पेमेंट, मेरे को मार्केट को पेनिट्रेट करना है तो 2 पोजीशन रहती है, अगर रेट कम करूँ या पेमेंट हम ज्यादा दूँ. तो मेरे को बेहतर लगा था पेमेंट मैं ज्यादा दूंगा, क्योंकि रेट एक बार कम कर देते ना उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको मार्केट से. बराबर. आप थोड़े पेमेंट थोड़ा टाइम से मिलेगा, मगर फिर उसको आप प्लीज कर सकते हो. जो आप हमारा लास्ट क्वार्टर ही देखोगे तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 45 डेज अचीव किया हुआ है पेमेंट का. तो हमारा टारगेट ही 60 डेज का था कि हम टारगेट अचीव करें. तो सस्टेनेबल सर वर्किंग कैपिटल साइकिल में 60-65 दिन पकड़ सकता हूँ गोइंग फॉरवर्ड, इसीलिए कि हम मैक्सिमम 60 डेज तक जाना चाहेंगे, उससे आगे नहीं. और पहले हम 80 डेज लास्ट फर्स्ट H1 में अचीव कर रहे थे, वो भी हमने इंक्रीज किया और 40 पे आया है अभी. तो 40 to 45 डेज बेहतर है हमारे लिए अभी राइट नाउ. ओके. थैंक यू वेरी मच सर, एंड कांग्रेट्स ऑन गुड सेट ऑफ नंबर. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ दश कैपिटल की तरफ से, प्लीज प्रोसीड. Good afternoon, sir. Congratulations on good set of numbers. Sir, I have 2 questions. एक तो जो अपना SMC और FRP है, जो आपने अपने सेगमेंटल्स में दिया, उसमें although you are saying कि multiple हमें जगहों से ग्रोथ दिख रही है, but that growth hasn't really materialized into numbers. जैसे अगर FY25 की बात करें तो अगर सिर्फ SMC ले लेते हैं, आपने कंपाउंड सेल्स भी करी थी अराउंड 15 करोड़ की, विच इज अ पार्ट ऑफ योर सेगमेंटल शायद SMC का. अगर उसको हटाते हैं तब भी 68 करोड़ का SMC करा था अपने रेवेन्यू, वो 9 मंथ्स में इज क्लोज टू 48 करोड़. तो मतलब वो फ्लैटिश रह रहा है. FRP साइड पे भी अपने 30 करोड़ करा था, and that is also close to 12.5 crores 9 months में. So levers आपने explain कर दिए सर, but what gives you the confidence कि ये अगर हम SMC इस साल 60 करोड़ ही करते हैं तो अगले साल वो 120 कर लेंगे,
एंड FRP ऑल्सो, मतलब अगर 20 करोड़ भी टच करते हैं, दैट विल बी 4x 70-80 करोड़. राइट. सो ऑर्डर पाइपलाइन में आपको ऐसा क्या दिख रहा है? व्हाट इज चेंज इंडस्ट्री लेवल पे क्या दिख रहा है आपको? Could you please throw some light on this? And इस साल का अपना स्लो डाउन क्यों था इन बोथ द सेगमेंट्स या फ्लैटिश परफॉर्मेंस क्यों? ओके. इस साल बेसिकली पहले 6 महीने H1 के थे, वो बारिश काफी लंबी चली थी. ऑलमोस्ट दिवाली तक आप सोचोगे तो सारी जगह पे कुछ ना कुछ बारिश. तो ऑर्डर थे हमारे पास, मगर हम डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे थे. तो उसी के बाद अगर उसके बाद आप देखोगे तो काफी तेजी से हमने परफॉर्मेंस करना भी स्टार्ट किया लास्ट 3 मंथ में, और रेगुलरली वो ग्रो अप करेंगे भी सही पिकअप, क्योंकि जितना हम कर पाएंगे, क्योंकि मशीनरीज और वो सब हमने प्लान आउट किए थे जो अब हमारे पास आएगी राइट नाउ. जिस हिसाब से हमारा IPO प्लान आउट हुआ है तो वो एड ऑन होगी. तो उसकी वजह से हम लोग ऑलमोस्ट प्लान आउट करेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर जो मैं नंबर्स बोल रहा हूँ वो आराम से अचीव हो जाए. क्योंकि लास्ट ईयर हमने कंपाउंड बेचा था ना, तो उसमें कैसा होता है, रॉ मटेरियल्स बेच रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने वो एड ऑन किया हुआ था. मगर इस बार हम लोग मटेरियल बना के बेच रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो मटेरियल मैं बना के बेचूंगा तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगी और नंबर्स भी हमारे ज्यादा घूमेंगे. और अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे मेरे को आगे दिख रहा है, तो मैंने जस्ट कहा था कि मैंने आंध्र, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आंध्र में जो हमें अभी टेंडर्स और वो सब अचीव किए हुए जो हमें मिलेंगे, तो वो प्लान आउट उस हिसाब से रहेंगे कि जो एक स्टेट हमारे ओपन होते हैं, और जैसे ही 3 साल खत्म होने के बाद 4थे साल में आप आते हो तो गवर्नमेंट में भी आप पे भरोसा करके ऑर्डर थोड़े बड़े और लंबे देती है. तो उसके वजह से हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर हमारा देखोगे तो वो सिर्फ 7 करोड़ का था, दूसरा ईयर हमने 28 का किया ही था, उसके बाद 60 करोड़ का हमने, तब तो हमारे पास ये CTP भी नहीं थे. तो उसके बाद ये एड ऑन होते चले गए सारे प्रोडक्ट्स जो यूटिलिटी में यूज होते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. प्लस FRP में अगर हम चाहे तो पहले सिर्फ हम ग्रेटिंग यूनिट्स कर रहे थे, अभी हम पल्टूजन्स, इसमें केबल ट्रे और वो सारे सेगमेंट्स भी एड ऑन होते हैं हमारे, तो वो भी हमारा एक सेगमेंट ऐड होता है, जिसके वजह से काफी तेजी आएगी. ऑलरेडी हमने 2 मशीन तो हमारे डिलीवर्ड हो भी चुके हैं, और राइट नाउ वो 3 और मशीन भी प्लानिंग में, जो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में आ जाएंगे हमारे पास. उसके बाद काफी सारे अप्रोच भी हमने लिए हुए हैं बैक टू बैक, तो उसमें कंटिन्यूटी ऑर्डर दिख ही रहे, और एक्सपोर्ट भी हमारा अच्छा खासा स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर भी हमारा फोकस है, तो वो आराम से हम अचीव कर पाएंगे. अंडरस्टूड. सो अनदर फॉलो अप क्वेश्चन सेगमेंटल पे, जो अपना CTPT साइड है उसमें अपना बस डक्ट का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड है, सर नॉट रॉन्ग. एंड अपने को जो अभी रिसेंट ऑर्डर भी मिला है 40 करोड़ का, वो भी बस डक्ट साइड पे. एंड हिस्टोरिकली अपने को बस डक्ट पे अच्छे मार्जिन नहीं मिलते कंपेयर टू व्हाट वी गेट इन द CTPT साइड ऑल्सो. सो अभी भी जो 200-250 करोड़ का अपना नेक्स्ट ईयर टारगेट है, इसमें हाउ मच विल बी द बस डक्ट कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट विल बी द मार्जिन देयर बस डक्ट साइड पे, और CTPT का क्या मार्जिन रहेगा और ITCT का, एंड कितना उसका बाइफर्केशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? ओके, राइट, थैंक यू. बेसिकली कैसा था कि बस डक्ट हमारा इस ईयर का सबसे पहला एक ट्रायल ऑर्डर हमने लिया था स्टार्टिंग में, कि कैसे बनती है चीज, किस हिसाब से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ऑर्डर लिया था उसमें हम लोगों ने उतना काउंटिंग नहीं, हम लोग फर्स्ट ट्रायल किया था, उसके बाद ऑर्डर बड़ा उन्होंने दिया. प्लस ये कॉपर फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमें टर्म्स कंडीशन करनी थी, तो उसमें थोड़ा एक इश्यू आया था, उसकी वजह से ये मार्जिन कम रहे हमारे. मगर इस बार जो हमने ऑर्डर किए हुए वो स्टैंडर्ड मार्जिन जो हमारे रहते उसी हिसाब से हम प्लान आउट कर रहे हैं, और उसी स्टैंडर्ड से ही काम करेंगे. अभी भी ऑलरेडी CTPT में तो हम काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसी की वजह से ऑलरेडी हमारे मार्जिन जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं 10 to 12%, वो हम अचीव कर लेते हैं. तो उसी का फोकस हम रखेंगे कि उसी स्टैंडर्ड पे हम काम करें, और हमारा जो परचेसिंग पावर अब बढ़ा है तो वो उसको बेहतर अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा वो मार्जिन अचीव हम कर लेंगे जो हमारा स्टार्टिंग में हमें नहीं मिला था. वो रीजन ऑफ के, तब हमें भी आगे से उसी हिसाब से मटेरियल लेना था, और आगे से पेमेंट
साइकिल भी उस हिसाब से आती थी। अब हमारे पास ऑलरेडी परचेस पावर है हमारा वर्किंग कैपिटल की वजह से, तो वो हम अचीव कर पाएंगे हमारा 100। अंडरस्टूड सर। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो 153 करोड़ का अगर टोटल अपने सीजीपीटी सेगमेंटल में जो दिया है, इसमें से 10 कितना होएगा एंड द रेस्ट कितना होएगा? ऑलमोस्ट अभी हमारा बजट 100 के ऊपर रहेगा, और बाकी क्या सीटीपीटी एलटीसीटी और वो सब रहेगा 110 के अराउंड। क्योंकि वो ऑर्डर कैसा था कि एक्चुअली हमने जब बड़ा ऑर्डर क्लिक किया था तो सेगमेंट और जगह भी उस हिसाब से थी, इसीलिए हमने जगह भी ऑलरेडी इनहांस कर ली है। तो वो फैक्टरी भी अब डबल पोजीशन पे है, क्योंकि वो ऑर्डर ले लिया था। तो अगर ऑर्डर लिया है तो आपको सर्व करना है, उसमें वो नहीं देखना है कि मेरे को क्या अगर अचीव नंबर्स मैंने अगर कमिट किया है तो वो डिलीवर करना चाहूंगा। तो वो सी था कि हमारी जो मैन पावर तो उस पर ज्यादा काम कर रहे थे, तो वो हमने सर्व किया है और आगे भी इसमें अच्छा हम सर्व कर पाएंगे। अभी हमारा टारगेट मीटर क्यूबिकल पे ज्यादा है, क्योंकि उसमें हमने जस्ट हमारा क्लियरेंस मिला है और ऑर्डर बुक भी काफी बेहतर मिली है। अगले 3 या 4 महीने, ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने में हमें 10 करोड़ का मटेरियल सप्लाई करना है, जिस हिसाब से हमारी कैपेसिटी है। इसको भी इनहांस करूंगा तो उसके भी ज्यादा ऑर्डर हम लोग क्लिक कर पाएंगे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन है, ये प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अप्रूवल है जो अपने को मिला है। एसएमसी साइड पे भी 18-19% अपना 25% मार्जिन हो गया लेटेस्ट 9 मंथ्स में, लास्ट ईयर 18-19 का। एफआरपी साइड पे भी 11-12% के करीब था। EBITDA आई एम टॉकिंग, जो 16-17% टच का था। सो दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ right now we are already merged our cost auditing system, so उससे हम बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जब आप बल्क में डील करते हो और बल्क में काम करते हो तो काफी सारे क्लियरेंस और उसमें भी हम बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। और कॉस्ट ऑडिटिंग हमने स्टार्ट की, उससे हमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस हमारा मिला है। सो अब ये लेवल ऑफ मार्जिन कैन वी से इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो? ये जंप वन टाइम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है इन द जंप इन मार्जिन्स। अभी राइट नाउ सर हम चाहेंगे इसको मेंटेन ही एक बार मेंटेन प्रॉपरली कर ले, उसके बाद कहाँ पे हम सेविंग कर सकते हैं वो भी पोजीशन अभी तक बाकी है। अभी तो सिर्फ ऊपर से अभी कॉस्ट ऑडिटिंग चल रहा है, उसके बाद डिटेलिंग कहाँ पे हम सेविंग कर सकते हैं, कैसे हमारे मटेरियल्स में भी हमारा एक R&D रेगुलर फेस पे चलता रहता है कि जो प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड्स के चाहिए वो मिले, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी इतने ही हो। तो उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड्स पे काम कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि ऑलवेज बिजनेस जहाँ पे भी ग्रोथ होता है ना, कंपटीशन बढ़ती है, तो उस स्टैंडर्ड से काम करे, एक कंपटीशन को भी बीट करे, प्लस हमारे मार्जिन भी बेहतर है और सेविंग ही हमारा मेन चीज है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। दैट बी ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। अगला सवाल जिग्नेश जीवा कैपिटल की तरफ से, प्लीज गो अहेड। हाँ, ऑडिबल? यस। सर अभी आपने बोला कि अप्रूवल्स मिल चुके हैं फ्रॉम बिग यूटिलिटीज, तो अभी now we can start approaching them for newer products also. तो ये सब टेंडर बेस्ड ही होता है ना, जो L1 रहेगा उनको मिल जाएगा ऑर्डर? अरे वो डिपेंड L1 रहने पर भी ये लोग स्टैंडर्डाइज कैसा कर रहे हैं अभी प्लान आउट, कि किसी एक वेंडर को नहीं दे रहे ऑर्डर्स, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट वो फेस कर चुकी है। अगर एक को दिया और कहीं भी किसी भी सिस्टम में सबसे वर्स्ट कंडीशन वो सॉल्व नहीं कर पाया तो पूरा गवर्नमेंट हो जाता है। तो अभी वो लोग मेंटेनली कैसा करता है कि एक पार्टी को मैक्सिमम 60% तक ऑर्डर देते हैं, बाकी 2 पार्टियों को देंगे, तो मीन वाइल सब वो कर पाए, तो उसी हिसाब से स्टैंडर्ड चलता है। और L1 में मेंटेन करते हैं, मगर अभी आप देखोगे तो गवर्नमेंट उसमें भी स्ट्रिक्ट हो गई है कि सिर्फ L1 मैच नहीं करना है, आपको मटेरियल स्टैंडर्ड भी मैच करना है। तो उससे रेगुलर और ब्रांडेड प्लेयर रहेंगे वही मैनेज कर पाएंगे। कैटर मार्केट वैसे ही कोई भी आके टेंडर भर दिया है वो नहीं होगा।
सर अपना गवर्नमेंट टोटल बिजनेस में से कितना रहता है? राइट नाउ हमारा जो भी रहता है उसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 60% गवर्नमेंट बेस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट, क्योंकि मुझे वो लास्ट 30 ईयर्स से मेरे ग्रैंडफादर वो सब में इसी बिजनेस में थे, तो वो हमारा अच्छा खासा एक पकड़ है जिससे पेमेंट और वो सब सेफ्टी रहता है। अभी 10% हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और बाकी का यूटिलिटीज और बाकी सारे जो नॉर्मल कस्टमर्स रहते हैं उस पर आप फोकस हमारा रहेगा। ओके, तो जैसे आपने बस डक के बारे में बात की, ये दैट वाज द फर्स्ट ईयर, थोड़ा रॉ मटेरियल कॉपर की वजह से थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट हो गया था। जैसे अभी अपने नए प्रोडक्ट्स में जाएंगे R&D करके, तो इनिशियली थोड़ा धंधा लेने के लिए अपने को मार्जिन पॉइंट करना पड़ेगा आगे जाके। बेसिकली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर रहेगा सर। उसमें कैसा है कि मैं अभी आपको बोलूंगा, कई बार प्रोडक्ट ऐसी होती है कि नीश लोग ही बनाते हैं, मार्केट में इतना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है मगर बनाना है। जैसे हमारी ये मीटर क्यूबिकल हो गया, तो उसमें हम स्टैंडर्ड कंपनी को देखा जाए कि जो अप्रूवल सारे अचीव करती है प्लस लैब सेटअप है उस हिसाब से, तो एक मैं तो ना कि एक ब्रांड के हिसाब से हम ही लोग हैं, हमारे अलावा ऑलमोस्ट 3-4 लोग और है, तो उसमें हमें मार्जिन कम करने की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड मार्केट के चलते उस हिसाब से ही मिलेंगे, तो उसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर मार्जिन से काम करेंगे। तो हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे भी अगर वो वॉल्यूमेटिक प्रोडक्ट है कि जिसमें मार्केट को भी हमें कैटर करना है, तो उसमें कई बार कम करना पड़ता है। मगर अब जिस प्रोडक्ट पे हमारा फोकस है, तो उसमें शायद सिर्फ प्रोडक्शन हमारा कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, अदरवाइज उसमें मार्जिन कम नहीं करना पड़ेगा, उसमें हमें अच्छा मार्जिन मिलेगा। और जैसे कि आपने पहले केपेक्स 25 करोड़ का पूरा कैसे कैसे ग्रोथ होगा वो आपने दिखाया, तो सर ये अगर ये पूरा केपेक्स होने के बाद भले 27 में तो पूरा नहीं कर पाएंगे 450 ही, लेकिन 28 या 29 में मैक्सिमम अपना कितना रहेगा, कितने तक पहुंच सकते हैं इसमें? अगर इसी कैपेक्स की बात करूं तो कैपेक्स उस स्टैंडर्ड से कर रहा हूं कि मैं ऑलमोस्ट 800 से 1000 के बीच आराम से चला जाऊं। बाकी सारी प्रोडक्ट रेंज हमारी डेवलप्ड हो गई है, जहाँ पे हम लोग लैब और वो सब कर रहे हैं, जिससे हम स्टैंडर्डाइज मटेरियल बना पाए। तो उससे हमारा ऑलमोस्ट ऑफर का नंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करेंगे कि मल्टीफोल्ड में ही जाए, जिस हिसाब से हमारा अभी तक का रहा है प्रोग्रेस, कि इस बार साल नंबर है उससे डबल फोल्ड में जाऊं और उससे आगे भी डबल फोल्ड का ही ट्राई करूंगा। और सर जैसे कि अभी आजकल काफी कमोडिटीज के ये भाव में बढ़ोतरी हो रही है, तो अपने मार्जिन प्रोटेक्टेड रहते हैं या कभी वन ऑफ अपने को हिट लेना पड़ेगा? कैसे स्ट्रक्चर रहता है अपना? जो हम फर्स्ट अभी लास्ट ईयर के मैं सीख रहा हूँ, तो अभी हम लोग उसी बेस के जिससे गवर्नमेंट करती है ना डील, उस हिसाब से हम डील कर रहे हैं कि अगर कॉपर रेट है तो आज आप मेरे साथ फाइनलाइज कर रहे हो, तो आज का रेट जो भी है वो एक डिसाइड हो जाएगा। जब भी आप डिलीवर्ड लोगे उसमें जो भी फ्लक्चुएशन आएगा वो बैक टू बैक इम्पैक्ट कर देंगे, तो हमारे मार्जिन पे असर नहीं करेगी अब वो चीज। बराबर। और जी आपने पहले बताया कि आप पैट पे ज्यादा ध्यान दे रहे 10-12%, लेकिन अगर हम लोग कैश फ्लो देखें तो अपना नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है लास्ट 4 साल में, क्योंकि अपने को इन्वेंट्री और डेटर्स भी काफी हाई रहते हैं, तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट है सर, आप देखोगे तो हमारा कैश फ्लो काफी बेहतर हो रहा है अब, और धीरे धीरे बढ़ी। बीच बीच में कैसा है कि हमारा कोई भी साल ऐसा नहीं गया है कि जिसमें हमने कैपेक्स ना किया हो, क्योंकि ग्रोथ हमें चाहिए था, तेजी से ग्रोथ चाहिए था। आप हमारा इम्पैक्टफुल ग्रोथ देखोगे तो काफी तेज है, हम लोग कभी भी रुके नहीं है कहीं भी किसी पोजीशन पे। इसी वजह से कई बार कैसा होता है कि कैश फ्लो मेंटेन करने की जगह मैं बिजनेस डेवलप करने पे फोकस ज्यादा कर रहा था। अब हमारा ऑलमोस्ट उस पर भी हमारा फोकस है। ये चीज सारी भी हम लोग समझ रहे हैं कि
अगर कोई भी स्टार्टिंग बिजनेस रहेगा ना तो उस पे ये कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा, मगर वो इम्प्रूवमेंट आपको आगे बहुत जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। Nil bhai, sorry for interfering. Deepak bhai, please share you. Yeah. What is the? I would like to add. Yeah, I would like to add something. Yeah. Hello sir, I'm Deepak Patel. Actually, we have focused now on a stock clearance on a fast movement basis, as already Mr. Neil bhai said that we have got so much of orders and we are our delivery and all we have improved so much. As we have a good infrastructure, we can have that facility of delivery of the goods on a very good rate on a daily basis. And another is for clearance of debtors. We have very worked hard on this part, and now we have control our debtors to the 45 to 60 days. And for the LTCT and LTCT part, where the copper is the main product, where the price fluctuation is there, we have tried to convert our debtors in some part to some extent on a advanced basis also. So we are seriously working on that part to improve our cash flows. Correct. So that advances, are we able to get 20-30% advances? Yeah, depends on the party and depends on the order size what we are getting. We have that range of 20% to 50%. डिलीवर से पहले हम 100% बिलीव कर डिलीवर्ड से पहले हम 100% ले लेते हैं। यस। ओह नहीं तो फिर सर अगर आप लेते हैं तो डेटर्स काफी हाई दिखता है एट द एंड ऑफ नहीं नाउ ऑनवर्ड्स सिंस लास्ट क्वार्टर वी हैव स्टार्टेड ऑन दैट पार्ट and now we are controlling to give the more credit period to the small parties, and for still on a higher side we are giving some sort of credit period, but at least we have that we are generating facility for them to create a advance to 20% to the 50%. Okay, it is not like still percent over another. Yeah, still 60%. वो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि 60% अगर गवर्नमेंट से धंधा आ रहा है वहां से तो सर अपना काम होने के बाद ही पैसा मिलेगा ना। गवर्नमेंट में क्या होता है सर, दे हैव फिक्स पेमेंट साइकिल्स, तो उसमें ऑन टाइम मिलता है। और कई सारी जगह अगर आप बीजी कंफर्मेशन दे देते हो तो उसमें भी हमें कई जगहों पे कई गवर्नमेंट में एडवांस 10% अराउंड देते हैं वो लोग। ओके ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल जयेश HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से। जी थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल? यस हाँ जी सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर, अगले 3 से 5 साल के लिए आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए कौन से की डिमांड ड्राइवर्स रह सकते हैं आने वाले 5 सालों तक, या 4 to 5 years? बेसिकली 4 to 5 years ये कंटिन्यू SMC, अभी उसमें SMC बॉक्सेस हो गए, मैनहोल कवर्स हो गए, फिर हम लोग जो ऑटोमोबाइल्स में भी सर्व करने जा रहे हैं वो भी एक सेगमेंट है, वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हमारा जो आर्मी सेक्शन है उसमें काफी सारी प्रोडक्ट्स है जो इससे बन गई है SMC से। और प्लस रेलवे में काफी सारी चीजें, अभी वंदे भारत टोटल है तो उसमें FRP का अभी जस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, काफी सारे मेट्रो या रेलवे प्रोजेक्ट इसी से बन रहे हैं, तो उसमें भी हमारा फोकस ही है। तो हम SMC FRP में ये सारे सेगमेंट प्लस अलग से जो भी हमारा सेगमेंट है उसको अचीव करना चाहेंगे। और दूसरा सिटी फिटी इलेक्ट्रिसिटी जो भी चीज है हमारी जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है वहां से हम लोग आगे जाके ये बस डक्ट मीटर क्यूबिकल VCB पैनल में भी प्लान आउट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद आगे हम लोग प्लान आउट करेंगे। तो आप जैसे हिसाब से देखोगे तो एक स्टैंडर्ड यूटिलिटी प्रोडक्ट एक ही रेंज में पूरा एक सेगमेंट बन जाए हमारा, और बाकी यूटिलिटीज को जो भी सर्व करना चाहेंगे वो हमारा प्रोडक्ट रेंज में ऑलरेडी अवेलेबिलिटी होगी एज ए कॉम्पोजिट मार्केट। ओके तो ये आपके की डिमांड ड्राइवर्स रह सकते हैं।
यस यस, ये बेसिकली आप देखने जाओ तो ये ऑलरेडी जो हमारा बॉक्सेस है वो हर स्टेट्स में तो जा ही रहा है, प्लस हम अलग से जो मटेरियल्स डेवलप कर रहे थे वो भी अभी नए नए सेगमेंट्स में अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी यूजिंग में है काफी ज्यादा, और नए नए टैप भी हो रहे हैं हमारे, तो उस पर हमारा फोकस है कि हम उस पर काम करें और अचीव भी करें। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा another question that will be from my end is, sir, how dependent is the business on power distribution and government capex? कितना सारा डिपेंडेंट रहेगा? हाँ यस, बेसिकली कैसा है कि अगर पावर डिपेंडेंट, और वो पावर एक ऐसी चीज है वो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगी आपकी, तो उस पे एक फोकस रहेगा, मगर रेगुलर फेज पे रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट 30 ईयर्स से मेरे ग्रैंडफादर वो भी बिजनेस करे, मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तो वो आगे भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। आज इंडस्ट्री में कुछ AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पावर के बिना चल ही नहीं पाएगी, तो ये बिजनेस रेगुलरली फर्म में बढ़ेगा। और जब आप इंडिया बढ़ रहा है तो उसके साथ ये सारी चीजें भी बढ़नी ही वाली है। जब ट्रस्ट इन इंडिया, ट्रस्ट इन इंडो। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज द टिपिकल ऑर्डर साइज इन एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ दैट? नॉर्मली हमारा 7 to 12 मंथ का सर्विंग टाइम रहता है, और ऑर्डर्स ज्यादातर सारे बुक्स हमारे दिसंबर टू मार्च के बीच में रहते हैं। अप्रैल ऑनवर्ड से सर्विंग स्टार्ट होता है। अगर बारिश है तो एसएमसी बॉक्सेस में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। उसके बाद एक जो दिवाली के बाद आता है हमारा, ऑलवेज H2 हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहता है। ईयर टू ईयर आप जब भी मेजर करोगे तो वही दिखेगा। और मार्च ऑनवर्ड जब हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं तो सही बात, मार्च में भी हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो वो डिपेंड्स है हमारा अभी कि इस बार कैसे हम परफॉर्म कर पाएंगे। ओके सर, आपके जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सो आर दोस लार्जली स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट? कैसे मतलब डिजाइन करते हैं? जस्ट पार्डन सर, मैं कह रहा हूँ सर, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आर दोस लार्जली स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट? यस यस, वो बेसिकली क्लाइंट और स्टैंडर्ड एक वो रहता है। जो अगर बॉक्सेस की बात करो तो स्टैंडर्ड JB हमारे रहते हैं, जंक्शन बॉक्स। बाकी सब में हम लोग एज अ क्लाइंट डिपेंड के हिसाब से ही हम प्लान आउट करते हैं और डिजाइन करते हैं। और बाकी रहा FRP प्रोडक्ट, तो FRP में ग्रेटिंग एक स्टैंडर्ड साइज रहती है। उसके बाद कट डाउन एज ऑर्डर्स रिक्वायर्ड, और केबल ट्रे और वो सब तो एक स्टैंडर्ड साइज इंडस्ट्री की है, तो उसी को बनाते हैं हम लोग। और बाकी CTBT इलेक्ट्रिसिटी है तो वो एक IS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही बनती है। ये बसडग हो गया, CTBT या मीटर क्यूबिकल, वो IS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही हर जगह पे डिपेंड करती है। Okay. And sir, if we talk about the scalability, so how scalable are your SMC and FRP production lines? एक्चुअली स्केलेबिलिटी हम लोग एज अ मीटर बॉक्स के अंदर तो मशीनरीज ऑलरेडी है, तो हम लोग डाइज और वो सब प्लान आउट कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट ओपन कर रहे हैं। और अगर आप स्केलेबिलिटी देखो तो अभी जिस हिसाब से स्टैंडर्ड्स मार्केट बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना हो सकता है मार्केट। और उसमें भी अगर अभी कैसा है कि स्टैंडर्डाइज जो भी हमारा जो मेटल को रिप्लेस कर रहा है, मेजर मीटर को रिप्लेस करने की बात वो भी है कि जो स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर आप जैसे ही आप कौन के टावर देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो वो भी FRP या SMC के रहेंगे। रीजन ऑफ के जो भी हमारे ये फ्रीक्वेंसीज पास करनी है तो वो इजी टू वर्क SMC FRP से रहता है। तो अभी स्केलेबल काफी है, जहाँ पे भी अभी मेटल कर रहा है वो सारे कुछ को रिप्लेस करना है। और अभी भी आप अगर ड्रोन सिस्टम देख लो या कुछ भी मीटर आर्मी के भी इक्विपमेंट्स है, वो सारे फ्रीक्वेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें भी हम मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं बैक टू बैक।
ओके, तो मतलब मेटल से, मतलब एज फार एज इट इज कनेक्टेड विद मेटल, तो स्केलेबिलिटी तो है, करेक्ट? स्केलेबिलिटी काफी है सर अभी, क्योंकि आप अगर इंडिया मार्केट देखोगे ना तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है कॉम्पोजिट मार्केट, तो उसके वजह से स्केलेबिलिटी काफी अच्छी है अभी। जी जी, ठीक है, ओके। And sir, what is the current installed capacity across all 4 manufacturing plants? कितनी रहेगी कैपेसिटी? अभी तो हम अगर मैं हर जगह पे डिफरेंट डाई टू डाई है, मगर अगर हम रो मटेरियल्स बनाते हैं तो हम 500 से 600 टन तक जा सकते हैं, जो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन से ही करेंगे, जो एफएमसी की है। एफआरपी में हमारा स्टैंडर्ड मिल्स 20 टन और मिला के सब कुछ उसका एक अलग से स्टैंडर्ड रहेगा। ग्रेटिंग के हमारे पास 10 मशीन है और पल्ट्यूशन के अभी हमारे पास 6, तो और 3 हम एड ऑन करना चाहेंगे। और सीटीपीटी एलटीसीपी ज्यादा फैब्रिकेशन वर्क और टेक्निकल वर्क है, तो उसमें मैन पावर एड ऑन करके हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उसमें। ओके। सर इसके अलावा इस हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटेड है वर्सेस मैनुअल? नॉर्मली जो बॉक्सेस हो गए तो उसमें फैब्रिकेशन वर्क है वो हमारे मैन्युअल वर्क है, उसमें भी थोड़ा बहुत ऑटोमेशन हम कर रहे हैं धीरे धीरे, मगर टोटल ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर रहता है। प्लस हो गया हमारा पल्ट्यूशन और ये ग्रेटिंग, उसमें हम कट डाउन और वो सारी प्रोसेस ही इसमें कर रहे हैं राइट नाउ के जो मैन पावर से, बाकी तो सारा ऑटोमेशन से निकल रहा है। बाकी सारी प्रोडक्ट्स हमारी मैन पावर पे डिपेंड करती है ज्यादा। So do you see sustainable order inflow momentum in the upcoming financial year, that is FY26 to FY27? 26 Sir, sustainable order inflow momentum. Right now we have almost achieve 250 का टारगेट तो है ही, और ज्यादा मार्च एंड तक ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 140 था, प्लस नया कल ही रात को या कल रात को ही हमारे पास ऑर्डर्स नया भी आ चुका है, तो रेगुलरली मार्च एंड तक काफी ऑर्डर बुक बिल्टअप हो जाएगी। तो अभी जिस हिसाब से हमने प्लान आउट किया है तो काफी सारे टेंडर्स भरे हुए, तो टारगेट है कि हम इसको अचीव कर ले जो हम नंबर्स ले रहे हैं। ओके। सर, are there any patented or proprietary product designs? कुछ हैं ऐसे डिजाइन? Just pardon, just clear कर आंसर क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन ये था सर कि कोई भी ऐसे पेटेंटेड और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट डिजाइन है जैसे? बेसिकली राइट नाउ तो नहीं है। हम लोग अब स्टैंडर्डाइज प्लान आउट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइन नहीं होती क्योंकि ये आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी रहती है। उसमें हाँ यूनिकनेस हम लोग कैसे करते हैं कि टेंडर टू टेंडर, अब अगर गवर्नमेंट और पब्लिक को सर्व कर रहे हो तो कई बार गवर्नमेंट उसमें एक स्टैंडर्डाइज रखती है कि इनर मार्जिन फिक्स रहता है कि आपको इस हिसाब से ओपनिंग देना है, इस हिसाब से उस स्टैंडर्ड में आप जो भी डिजाइन करना चाहो वो कर सकते हो। तो वो कई बार इजी टू सर्व के लिए हम लोग करते हैं और उसी की वजह से हम लोग काफी तेजी से भी आगे जा रहे हैं क्योंकि हम पब्लिक का सोच के काम कर रहे हैं। सर एक और था क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट टीम्स एक्सपीरियंस इन कंपोजिट्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स? यस सर, के लास्ट उन लोगों का शायद हमारा जो सेल्स हेड है, प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी के रंजित मिश्रा, वो नॉर्दर्न बेल्ट हेड करते थे सिंटेक्स में लास्ट 30 ईयर्स से, तो उनका अनुभव काफी बेहतर हमें परफॉर्मेंस में बेहतर देता है। और बाकी उनकी टीम जिस हिसाब से वो रेगुलरली इसी स्टैंडर्ड्स में काम करती है, तो इन लोगों को ऑलमोस्ट लास्ट 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री का सबको, तो इसीलिए हम बेहतर तरीके से हम लोगों ने टीम बिल्डअप में काफी ध्यान दिया था स्टार्टिंग फेज में। तो उसका अभी हम लोग जो बेनिफिट हमें जो मिल रहा है कि हम लोग इतने तेजी से आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह हमारी टीम भी है
जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी है और एक इजी टू, उनको पता है ना कि कहाँ पे टैप करना है और काम लेना है, तो वो इजी टू सर्व हो जाता है। ओके, ठीक है सर। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर आगे फ्यूचर को देखते हुए सर व्हाट आर द बिगेस्ट ऑपरेशनल रिस्क दैट यू फोरसी, एंड सर उनके कुछ मिटिगेशन प्लान? राइट नाउ के ऐसा कुछ मुझे को मेनली मैं देखूँ तो मेरे को ज्यादा दिखता नहीं है। काफी कॉम्पिटिशन शायद बढ़े तो अभी एक स्टैंडर्ड 3 या 4 साल तक उसको भी एक ग्रोन के लिए टाइम लगेगा। और नॉर्मली जो प्रोडक्ट रेंज है, अगर प्रोडक्ट पे ही बात करें, अगर वो रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि जो चाहिए ही चाहिए सब, जिस हिसाब से अगर इंडस्ट्री को आप सोचोगे तो मेटल को रिप्लेस करना ही है। अगर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है तो एआई पे वर्क करना है तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो आगे इसमें ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। और अगर प्रोडक्ट भी प्लस माइनस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हुआ तो वो सब पे इफेक्ट करेगा, मगर फिर भी ग्रोथ मेरे को क्लियर दिख रहा है और आगे भी बेहतर परफॉर्मेंस ही मिलेगा। तो ये सर मिटिगेशन कह सकते हैं जस्ट सर कैसे? नहीं सर कह रहा हूँ सर, नहीं एज एन को फिर मिटिगेशन कह सकते हैं ना? हाँ जी ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल रौनक बंसल नुवा ऑर्बिट की तरफ से। हेलो हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस जी जी, आपकी आवाज आ रही है। Congratulations sir on a great set of numbers. Thank you. Most of my questions are answered. I have one small question. हमारा जो current order book है around 150 crore के आसपास का, उसमें से SMC, FRP, CTPT इसका bifurcation आप दे सकते हो क्या? राइट नाउ ओके, अभी ऑर्डर बुक है उसका। यस, ऑर्डर बुक में SMC का कितना है, FRP का कितना है एंड CTPT का कितना ऑर्डर है, अगर ये bifurcation आप दे सकते हो। राइट नाउ एसएमसी का ऑलमोस्ट 40 या 50 के अराउंड ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा ऑर्डर। बाकी का हमारा एफआरपी का सेक्शन है तो उसमें हमारा 30 के आसपास का ऑर्डर बुक है, और बाकी का हमारा सीटीपीटी इलेक्ट्रिसिटी का है। ओके सर, और जो आपने पिछली बार कहा था कि रेलवे साइड में हम अप्रूवल्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे वॉशरूम्स वगैरह में भी एसएमसी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं रेलवे के, तो साइड में क्या डेवलपमेंट है सर? बेसिकली हम लोगों ने डिजाइन अप्रूवल तो दे दी है ऑलमोस्ट। हमारा जो नई अप्रूवल और जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इस मंथ में आ जाना चाहिए, और बाकी का अगर डिजाइनिंग अप्रूवल मार्च एंड तक आ गया तो प्रोडक्शन हम लोग सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद डाइज और वो सब बनना जाएंगे, क्योंकि डिजाइन और ऑलरेडी हम लोगों ने करके उनको सबमिट की हुई है। तो अब देखते हैं वेट में है कि कब अप्रूवल जाता है। उसके बाद डाइज और वो सब प्लान आउट हो गए, जो ऑलमोस्ट पूरे डेवलपमेंट में 3 महीने ऑलमोस्ट लगेंगे। उसके बाद सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ओके सर, तो अगर हमें मार्च एंड तक अप्रूवल आ जाती है तो FY27 एंड तक हम सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? नहीं तो हम फर्स्ट सितंबर ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट सप्लाई होना चाहिए। टारगेटली तो ऐसा ही लेके चल रहा हूँ कि सितंबर ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट सप्लाई ऑलमोस्ट निकल जाए। ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल निश्मा अल्फा ग्रुप की तरफ से। Hello. Thank you for the opportunity and congratulations for the fabulous result. Thank you. I just have one question. Could you shed some more light जो अभी आप नए वेंचर्स में जा रहे हो, the new product line that you are starting, और the one जो अपने कंटेनर्स मेंशन जैसा कि अभी मान रहे हैं, तो जरा थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। किसके लिए? जस्ट क्लियर इट। अच्छा सर, द वन थिंग दैट यू मेंशन कि हम कंटेनर्स की वो कर रहे हैं, अभी आपका फर्स्ट
अप्रूवल के लिए ओमान भी डिलीवर हुए हैं, एंड रेलवेज में हम कौन से प्रोडक्ट्स के साथ एंटर करने वाले हैं, हम कौन सी स्टेज पे हैं अभी? ऑलरेडी हमारा एक ट्रायल ऑर्डर था उसमें तो हम लोग ने मटेरियल बेच दिया है। दूसरा अभी हम सिटी का भी हम कर रहे हैं, जो फोकसली हमारा इस मंथ में वो भी चला जाएगा, और बाकी सब तो चल ही रहे हैं हमारे रेगुलरली। हम लोग अभी ओमान और अफ्रीका को टारगेट कर रहे थे, नेक्स्ट हम यूरोप को करेंगे राइट नाउ। उसी हिसाब से प्लान आउट है। हम मटेरियल सप्लाई एक्चुअली दुबई से काफी सारा चीज स्प्रेड हो जाता है, तो हम उसी को फोकस कर रहे थे अभी। अब नेक्स्ट ईयर हमारा यूके का प्लान आउट रहेगा। तो हम किस चीज का एक्सपोर्ट करें, मतलब ओमान में अभी हमने क्या डिलीवर किया है? आई डोंट हैव क्लैरिटी टू। बेसिकली FRP प्रोडक्ट्स है हमारे, जो केबल ट्रे ग्रेटिंग और पल्टूजन की प्रोडक्ट्स रहती है, वो है। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल सूर्य फिलिप कैपिटल PCG की तरफ से। हाय सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना था कि आपका जो टारगेट था 450 करोड़ था फॉर FY27, उसमें सेगमेंट मिक्स कैसे रहेगा? सर बेसिकली मैं आपको वो ऑर्डर टू ऑर्डर क्लियर किए हुआ था कि मैं सेगमेंट वाइज SMC हमारा 120 के अराउंड टारगेट रहेगा। उसमें बॉक्स प्लस हमारा बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो आपको अनाउंसमेंट मिलेगा आगे जाके, वो है। प्लस हमारा 250 के अराउंड CTBT LTCT का टारगेट है, उसमें मीटर क्यूबिकल और बाकी सारे प्रोडक्ट्स एड ऑन हो गए। और बाकी का 80 का हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट FRP सेक्शन का, जो हमारी पल्टूजन ग्रेटिंग और उससे आएगा। तो FRP का ही थोड़ा समझा सकते हो? अभी तो क्वार्टरली रन रेट ही 5-6 करोड़ के पास है, तो वो अराउंड 80 करोड़ तक कैसे जाएगा? हाँ, 80 करोड़ तक हो जाएगा। रीजन ऑफ क्योंकि हम मशीन एड ऑन कर रहे हैं अभी भी, तो हमने एक्चुअली लास्ट ईयर भी उसी के लिए हमारा प्लान आउट था, और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जो ग्रेटिंग्स के मशीन हमने बढ़ाने थे वो रेगुलरली ग्रेजुअली इस साल बढ़े हैं हमारे। फिर पल्टूजन हमने दिवाली के बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट किया, तो उसके 1-2 मशीन है जो एड ऑन हो गए हमारे। ऑलमोस्ट 10 मशीन का प्लान है हमारे पास, तो वो एड ऑन है क्योंकि ऑर्डर बुक है हमारे पास। हमने जैसे ही आप अगर इसके बाद दिवाली के बाद उसमें भी हमारा अच्छा खासा पीक है कि हम ऑलमोस्ट हर महीने 5 करोड़ का काम कर सके, उस हिसाब से हम कैपेसिटी इनहांस कर रहे हैं कि 5 से 7 पे चले जाए। तो वो मशीन अभी भी एड ऑन होगी फरवरी मार्च के मिड तक, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ का मंथली टारगेट रहेगा उसमें। अंडरस्टूड सर। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो भी रॉ मटेरियल है विच आर द मेजर कॉस्ट आइटम्स, और कुछ हेजिंग हम लोग करते हैं क्या रॉ मटेरियल का? मटेरियल क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का हेजिंग, प्राइस एस्केलेशन वगैरह से बचने के लिए। मगर बेसिकली जो कॉपर है उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बाकी सारे मटेरियल में इतना फ्लक्चुएशन भी नहीं रहता कि हेजिंग करना पड़े। मतलब ज्यादातर हम लोग जो भी डील करते हम परचेजर के साथ भी लॉन्ग टर्म की डील रहती है, ऑलमोस्ट 3 महीना या 6 महीना, जिस हिसाब से हमारा ऑर्डर बुक क्लियर रहता है उस हिसाब से डील रहती है। तो वो एक स्टैंडर्डाइज हम कर देते हैं, तो इसीलिए हमें परचेज में और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में जो बेनिफिट है उसी का है। बट अभी तो जैसे कॉपर तो काफी टाइकअप हुआ है, तो उसमें तो थोड़ा तो प्राइस एस्केलेशन वगैरह तो पास ऑन करना पड़ेगा ना, वो हो जाता है? हाँ, वो हो जाता है। हाँ, एक स्टैंडर्डाइज काफी बड़ा जब होता है वो हो जाता है। और बेसिकली कैसा है कि अब हम स्टैंडर्डाइज उसी हिसाब से ऑर्डर ले रहे हैं जो पूरे का पूरा पाइप उसके भी ही चला जाए। एज ए गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर देती है ना, तो उसी हिसाब से हम प्लान आउट करते हैं कि जस्ट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने ऑर्डर लिया है कि इस डेट पे कॉपर का ये रेट था, जब डिलीवर्ड होगा जो रोड फ्लक्चुएट हो गए उसको बैक टू बैक हम आगे पास ऑन कर देंगे। अंडरस्टूड सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। प्रश्न पूछने के लिए कृपया *1 दबाएं। अगला सवाल राकेश खोसला, धनुषन टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की तरफ से।
गुड आफ्टरनून। मेरा वॉइस सुन रहे हैं आपको? यस सर। हाँ जी, अच्छा। हाँ सर, आपने तो काफी क्वेश्चन आज मैंने जो मेरे माइंड में था कर दिया है आंसर। दो और सवाल है। एक तो अगर हम फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जस्ट मैं अपने जो भी यहाँ फैक्ट्री हेड कर रहे हैं उनका भी मेंशन कर दूंगा। कभी भी आप अहमदाबाद भी आ सकते हो, प्लस नासिक भी हमारा यूनिट है, कहीं पे भी आप करना चाहो। अभी टोटल हमारा 3 यूनिट्स है, उसमें कहीं पे भी आप करना चाहो जस्ट इन्फॉर्म अवर टीम, दे आर प्लान आउट एंड विजिट करवा देंगे आपको। हम किसको लिखे या किसको फोन करें? आप अगर नाम बता देते तो। मैं आपको पास ऑन suitable for Ranjit bhai, please, Anil bhai. अच्छा Ranjit bhai. बस मैं नंबर हाँ जी, हाँ ठीक है। वो नंबर ऑनलाइन से इधर से ले लेंगे आपके वेबसाइट पे। ऑनलाइन वेबसाइट पे भी उनका नंबर तो वैसे अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको वो भी दे देता हूँ। हाँ जी, 7575088803 7575088803। 8873 सॉरी 8803। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा और है, हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम मेन कंपनी में बनाते हैं कि हमारी कोई सब्सिडरी भी है जिससे बनवा के लेते हैं हम लोग? नहीं, मेन हमारा अपनी ही कंपनी बनाती है सारा। ठीक है, बस यही दो मेरे सवाल थे। वंडरफुल जॉब, नाइस नंबर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे। थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल जिग्नेश जीवा कैपिटल की तरफ से। सर ये जानना था अपना थोड़ा फाइनेंस नंबर्स पे, अगर किसी को पकड़ है तो मेरे को ये जानना था कि FY26 से FY27 में, क्योंकि IPO के बाद अपना डाइल्यूशन हो गया है, तो कितना ROE या ROCE पे हम लोग पहुंच पाएंगे? दीपक भाई। हेलो। यस। Hello. Hello. Yeah, I'm Deepal Patel. Just a moment, sir. I'll give you the brief. As we already have that finance in our hand, correct? So yeah, we are and we have that purchasing power, and we have suppressed our payment terms from the vendors also. Customers. That and we are, as Mr. Neil said, we have that capacity to route the funds very fast and we'll achieve the numbers. We can have that hope that we can maximum satisfy the ROE and ROCE. So just we can based on that we can achieve the highest maximum profit with a good EBITDA margin, and based on that we can satisfy the investors with a good ROE and ROCE. So broadly, if I can understand, as per September, we had 36 crores of net worth. Correct. And after that, we did IPO of 92 crores. Correct. And this year, we are expecting profit of around 30 crores. So broadly, we can reach 30 divided by around 150 crores. So 20% ROE, can this be possible? Yeah, we are expecting our good ROE for investors, but if the market and something which unexpected things are there, that will create a problem. But we are committing our investors on a good ROE, ROCE. Right. And our efforts is on a positive side only, because what I can say is we are building a good team, as we already Mr. Neil said, we are building a good team with a good vision. See, that is understood, but since this was a very big dilution, so there is to recover the ROE, it takes a lot of time. So wanted to understand if you have any financial. Okay, so I have one other question. Like
सर अगर आपका भी 30 साल पुराना कंपनी है तो आपने पास्ट में केमरोक करके कंपोजिट्स में था, सिंटेक्स भी था, तो ये कंपनीज में भी बिकॉज ऑफ सम लॉट ऑफ इश्यूज दे आई थिंक उन लोग मार्केट से चले गए या धंधा बंद करना पड़ा। Sir, for that I give you some brief about the vision of our promoters. Mr. Nitin. नहीं एक मिनट दीपल भाई, बेसिकली कैसा है कि जब भी मार्केट में ये इफेक्टिवली जब सिंटेक्स या कैमरोक गए थे तो वो हम लोगों को लग रहा है कि ज्यादातर उनका फोकस जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब इस प्रोडक्ट रेंज की इतनी वॉलेटिलिटी कैसा था कि कई बार आप ज्यादा पहले भी आ जाते हो और अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते मार्केट को, तो वो इफेक्ट रहती है। और ज्यादातर सिंटेक्स की बात करो तो उसमें सिंटेक्स का ग्रोथ काफी बेहतर था, परफॉर्मेंस भी बेहतर था। जब पूरा मैनेजमेंट वापस चेंज हुआ था, जब दूसरी जनरेशन आई तो उसको वो मेंटेन नहीं कर पाया था, रीजन ऑफ दैट तो वो इफेक्ट पड़ी थी ज्यादातर। क्योंकि हम लोगों ने सिंटेक्स के साथ भी काफी काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से इसी इंडस्ट्री में है, तो सिंटेक्स ही था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस प्रोडक्ट रेंज को जो यूटिलिटीज में होती है। तो रीजन ऑफ के वहां से फोकस सिर्फ चेंज हुआ था जब नई जनरेशन आई। बाकी उनका अभी भी मार्केट तो बेहतर ही है, मार्केट वहीं पे है और वो हटा उसके बाद भी काफी सारे लोग नए खड़े हुए। आज हमारी टीम भी मेनली सिंटेक्स से जो भी अच्छे लोग थे तो हमने उसी से हमारी टीम बनाई हुई है। और जो आप तेजी फील कर रहे हो हमारे इस ग्रोथ में, तो उसी का नतीजा है कि हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि अनुभव सबको है इसी इंडस्ट्री का, इसीलिए हम आगे काफी तेजी से जा रहे हैं। और ऑलरेडी मार्केट आर देयर कि जो सिंटेक्स वाइप आउट हुआ या कैमरोक वाइप आउट हुआ तो मार्केट खत्म नहीं हुआ था, मार्केट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी थी। मगर तब कैसे होता है कि छोटे मोटे काफी सारे प्लेयर हुए जो थोड़े थोड़े सिस्टमेटिक सर्व नहीं कर पाए। जो हम करना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं कि जिसको हम एक अच्छी तरीके से सर्व कर पाए एज अ ब्रांड। के आज भी अगर कहीं पे भी जाते हो तो स्टैंडर्डाइज ब्रांड डेवलपमेंट है कि इस प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट रहेगा, वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा फोकस वही है उसमें। और अगर पुरानी जो भी कंपनियां हैं वो उनके मिसमैनेजमेंट से शायद बंद हुई होगी, बाकी मार्केट आर देयर ऑलरेडी। सर नहीं सर, मेरा उतना ही कहना था कि सिंस आप लोग आपके सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि यू आर एंटरिंग मैनी अदर सेक्टर्स, सो आई थिंक ये सोच समझकर बहुत ही धीरे धीरे एंटर होना चाहिए, क्योंकि आपके सेक्टर में ही काफी बिजनेस है, अदरवाइज कहीं ना कहीं से नए रिस्क आ सकते हैं। नहीं बेसिकली सर हम भी जो सर्व कर रहे हैं वो कुछ अलग इंडस्ट्री में नहीं, ऐसे कैसे जा रहा है, हम सिर्फ यूटिलिटी को अभी सर्व कर रहे हैं। तो इसी मशीन इसी प्रोडक्ट में सिर्फ मेरे को डाई डेवलप करके अगर रेलवे या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे बस हो गई, ऐसा कुछ हो गया व्हीकल, उसमें अगर मैं सर्व कर पाऊंगा सिर्फ डाई डेवलपमेंट से, तो वो सबके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप एज ए कंपोजिट इंडस्ट्री देखो तो ऐसे कंपोजिट इंडस्ट्री है, हम सिर्फ यूटिलिटी इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरा फोकस वही है कि कंपोजिट में जो चीज मैं बना के सर्व कर पाऊँ उसको मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म करूंगा। राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। वन लास्ट अनाउंसमेंट, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं कृपया *1 दबाएं अभी। As there are no further questions from the participants, I would like to hand the conference over to the management for closing comments. Sir, closing comments, जी। Yes. Thank you everyone to calmly your questions and all the query. I think मैंने ऑलरेडी सबको थोड़ा क्लैरिटी प्रॉपर दे दिया हुआ इंडस्ट्री के मामले में। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ग्रोथ के मामले में इंडिया को ट्रस्ट करो, इंडो को ट्रस्ट करो, हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और काफी तेजी से इस इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन टू ट्रस्ट अस। धन्यवाद सर।
इक्विब्रिजिस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं इस कॉल में शामिल होने के लिए। आप सभी अपनी अपनी लाइन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am.